Recording started. So we have discussed that Python language has some features: interpreted, garbage collector, and dynamically typed. Now, one more thing is that this Python is an open source language. Okay. Python open source language, and it is widely used as a high level programming language for general purpose programming. And IBM recently predicted demand for data science professionals would rise by more than 25% 2020. In the PYPL popularity of programming language index, Python scored second rank with a 14% share in advanced analytic and predictive analytics market. It is ranked among top 3 programming languages for advanced analytics. तो ये सब चीज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन कितना पॉपुलर है. ठीक है. सो माय सजेशन इज दैट आपने एक बार पाइथन सीख लिया तो बाकी लैंग्वेज आपको सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है. इफ यू हैव achieved well level expertise in Python, then you don't need to go for another language. This is enough. Okay. So first of all, this is open source language. You guys know what does it mean by open source? क्या आपको समझ में आता है ये ओपन सोर्स क्या है? क्या कोई बता सकते हैं कि ओपन सोर्स मतलब क्या समझते हो आप लोग? What is So it is free for everyone, available for everyone. सर जो कोई भी यूज कर सके इजीली. Sorry, your voice was breaking. Please repeat. It is available for everyone. Very good. और एक जन ने कुछ कहा था, वॉइस ब्रेक हुआ था, बताओ आप फिर से. सर जो हर कोई यूज कर सके सर. हर कोई यूज कर सकते. ठीक है. और कोई बताना चाहते हैं? ओके. ओपन सोर्स मीन्स व्हाट? इसका जो कोडिंग है, ओपन सोर्स लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ कि इट इज फ्री फॉर एवरीवन. ओके. इट इज फ्री मीन्स either you can do some modification. Okay, you can use it, so there is no problem with that. ठीक है. तो पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है. मतलब क्या हुआ, आपने भी कुछ लाइब्रेरी फंक्शन बनाया. सपोज इन फ्यूचर you have created some library function, and if it is approved, then it will be added to some that particular library file. ठीक है. तो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है. दिस इज अ वेरी one more benefit of using Python. It is not like MATLAB. क्या किसी ने MATLAB सुना है? What is MATLAB? सुना है बट नहीं आता. अच्छा, कोई बात नहीं, बट सुना तो है ना MATLAB क्या है. ठीक है. और किसी ने सुना है MATLAB के बारे में? हाँ सर सुना है. आप कौन बोल रहे हो? तो বর্ষা. স্যার ময়ো শুনিছোহে খালি ইমান ভালকে গম নাপাওঁ বস্তুটো. ওকে, শুনিছাতো, ঠিক আছে. আৰু ওকে, MATLAB মই কিয় উদাহৰণ দিছো? Why I have cited the example of MATLAB? Because MATLAB is a very popular language that is mostly used in research laboratories. Even in my research also, I have used MATLAB. Okay, I also use this Python or some other languages, but what I have found that MATLAB is very good one. Okay, but इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन सोर्स नहीं है, पर इसके पास वो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होता है जो बाकी सारे लैंग्वेज में शायद ही होगा. ठीक है. बट एक ही प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट ओपन सोर्स. ठीक है. तो इसका ही कॉम्पिटिटर क्या है? पाइथन. वी हैव पाइथन एज एन वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ मैटलैब. ठीक है. सो आपने देखा होगा कि टॉप रैंक में अमंग द टॉप 10 लैंग्वेजेस पाइथन इज वन ऑफ देम. इवन इट हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन. अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक
in the top 10 languages. ठीक है, तो इतना जानना काफी है. अब आते हैं next. Now we have two versions basically, Python 2.7 and Python 3.6. Okay, so क्या कोई बता सकते हैं इसमें से older version कौन सा होगा? Can you tell me which version will be older? बताओ, Python 2.7 older है या Python 3.6? 3.6. पुराना, कौन सा पुराना वर्जन है? Which one is old one? 2.7. 2.7. 2.7. हाँ 2.7. भाई मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है, Python 2.7 is the older version. Okay. अब बात आती है कि आपको कौन सा यूज करना है, Python 2.7 versus Python 3.6 or the later version with extension from .t. Okay. Answer is 3.6. 3.6. क्यों? क्योंकि the official end of Python 2.7 is 2020 और अभी हम 2020 में ही है, right? So we cannot use this Python 2.7 after 2020 because it will be expired. You will not get any support from the Python community. So it doesn't make any sense to learn Python 2.7. Okay, so that's why in my lecture, in this subject also, I have chosen Python 3.6. And this Python 3.6 support 95% of the top 360 Python packages and almost 100% of top packages for data science. तो ये जो data science में बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, सुना है आप लोगों ने पहले? Data science, data scientist. Have you heard this term data science before? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? की बोलते हो तू? Can you explain in one or two lines that what exactly we do in data science? Research on data. Sir, एक एक करके बताओ. हाँ बोलो. The research on data. Research on data. Okay. And next. sir, data scientist is a person who works on big data. Okay. ठीक है, आवाज कट के आ रही है पर कोई बात नहीं, कुछ तो बोला आपने. और व्हाट इज डेटा साइंस? बोलो भाई, कोई आप जितने जन भी हो एक एक रेस्पॉन्स देने की कोशिश करो. ये 8 जन है. हाँ प्लीज, व्हाट इज डेटा साइंस? ओके ठीक है. कोई बता पाएंगे या मैं बताऊं? ये तो बोल दो, मैं बताऊं क्या, मैं एक्सप्लेन करूं या आप लोग बताओगे डेटा साइंस क्या है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है. यू हैव टू नो व्हाट इज डेटा साइंस. सर आप ही एक्सप्लेन करो. ठीक है, मैं बुझाई दिसो एबार ভালকে. सर नहीं आता. अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है. तो हाँ सर. हाँ, अभी डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस इज करंट ट्रेंड नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली इट डज, ये करता क्या है? कुछ नहीं, क्या है, आपके पास डेटा है, ठीक है, यू हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. नाउ what we do in data science, we analyze those data and we try to
extract knowledge and insight from those data. Got it? I'm repeating again. You have collected different data. Data may be structured or unstructured. Okay, structured data क्या है, unstructured क्या है, मैं बताऊंगा. ठीक है, structured data क्या है, unstructured data क्या है. But अभी के लिए समझो कि you have collected data that may be either structured or unstructured. But after that, what you will do? You will try to analyze that data and you will try to thereby extract knowledge or insight from those data. अब मैं इसको सरल शब्द में बताऊंगा कि आपने डाटा कलेक्ट किया. डाटा हो सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो. आप इस डाटा को पहले एनालाइज करोगे. आप कैसे एनालाइज करते हैं ये थोड़ा बहुत तो मैंने मशीन लर्निंग लेक्चर्स में बता दिया था. किसी को याद होगा, हिस्टोग्राम एनालिसिस सुना है आप लोगों ने, जो मैंने मशीन लर्निंग में बताया था, याद है? बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट. सबसे रेस्पॉन्स आता ही है मुझे, बताओ, सुना था ना? हिस्टोग्राम एनालिसिस, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट. Yes, sir. ओके, दे आर द डाटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट. आप क्या कर रहे हो, उससे डाटा को एनालाइज करके उसके बाद आप क्या करोगे, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करोगे. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल सा. आपके पास एक ऑनलाइन शॉपिंग ये है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. आप क्या करोगे, पिछले 2-3 सालों की जो आपका सेलिंग हुआ है वो सारे प्रोडक्ट्स का, इसको एक बार देखोगे. कैसे देखोगे? जितना भी आपके पास या तो एक्सेल शीट में हो या जहाँ पर भी आपने डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसको देख के आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे किस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट आया है और कौन सा मंथ में. ठीक है, in which month actually you are getting maximum profit from that particular product. इसी को हम बोलते हैं नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना या तो आप नॉलेज माइनिंग करना. और आप ये कहाँ से कर रहे हो? वो आपके पास जो डाटा है उससे कर रहे हो. चाहे आप ट्रेडिशनल वे से आप या तो कोई खाता मेंटेन कर रहे हो, या तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, या तो एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहे हो, या तो आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं. ठीक है, सो दिस होल प्रोसेस, what does the data science plays role here? If this data, अभी तो मैं कम डाटा की बात कर रहा हूँ. मैं सपोज बात कर दिया IBM के बारे में, सपोज मैं बात कर दी आपका गूगल के बारे में. तो in this blue chip companies, the amount of data is very huge. You cannot go or check one by one. You need what? A proper analysis of those data. Then only you can extract knowledge from those data. So that is what actually data science does. Data science tries to extract from the data through a proper analysis of the same. आ गया समझ में अभी क्या है डाटा साइंस, हम क्या करते हैं यहाँ पे? बताओ. नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा. बताओ. सर डेटा साइंस में सर स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर जितने भी टाइप्स ऑफ डाटा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एंड उसको मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. जैसे आपने बहुत सारा टेक्निक बताया हिस्टोग्राम एंड और भी, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा से नॉलेज और उसको यूज कर सकते हैं. Very good. Who is that? सर ममता. ओके ममता, यू आर करेक्ट. अभी मैंने जो बताया था वो भी यही चीज है. आपने क्या किया, वो सारे डाटा जो आपने स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड या तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, तो उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना कैसे करोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, ये सारे चीज आपका डाटा साइंस के अंदर आते हैं. ठीक है, और पाइथन एक बहुत ही सुइटेबल लैंग्वेज है डाटा साइंस के लिए. और कैसे? आफ्टर ऑल आई हैव ऑलमोस्ट एक्सप्लेन in my machine learning lecture that how you go for data pre-processing part, that is also a part of data science. ठीक है, ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ. If this is clear to you, I'll move. Please let me know. Yes, sir, it's clear. Clear? Okay. So then what's new in Python 3.6? Some points you have to know that it is cleaner and faster, and it is language for the future.
let's fix the major issues we have with the Python 2 series. And this was released just in the year 2008. And you know, it has been 9 years releasing robust versions of the Python. So after all, what I mean to say that whatever the bugs that we have found with these Python 2 versions, now they are no longer available, or they are no longer be found in Python 3.6. Okay, so Python 3.6 में ये तो advantage है. First of all, it is faster. Second, you will find a lot of libraries to perform the machine learning tasks. Got it? So these are the reasons why we have gone for this Python 3.6. Next, if someone asks you that Sir, what are the reasons that we need to learn Python, some of them are: first, it runs well in some sir, yeah, please. हाँ बोलो. sir, in your like IT workshop, sir, हम लोग क्या Python language सीखेंगे? नहीं, एक्चुअली ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट आईटी वर्कशॉप में ऐसा होगा कि जैसा वो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ये लैब क्लास है, मुझे तो सारे चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं थी. मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दिया और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है क्लास को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा वो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अभी बोल दिया था. ठीक है, बताओ. Okay, sir. हाँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट, इफ यू डोंट वांट दिस पोर्शन, आई विल डायरेक्ट कम टू द प्रॉब्लम पोर्शन. देयर आई विल गिव यू द प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर हाफ एन आवर, देन आई विल चेक द प्रॉब्लम. If it is wrong, then I will again ask you to solve the problem again. Whether you want to learn something or whether you want to go through the some normal way of classes, जो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी. या तो मैं So we want to learn something. या तो मैं कोई लैब असिस्टेंट को ऐसा यहाँ पे असाइन कर दूंगा, जैसे विशाल हो या तो सुदर्शना हो, वो सिर्फ आपको देखेंगे. आप अगर गलत किया तो आपको फिर से कहा जाएगा रिपीट करने की. ये भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीख के जाओ. अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, बोल दो. सर थोड़ा सर, बेसिक सीखना से चाहते स्टार्ट हैं. कीजिए. हाँ सर, basic से. आई थिंक मैंने पूरा सबसे बेसिक से ही स्टार्ट किया हो, क्योंकि मैंने इंटरप्रेटर बता दिया आपको, कंपाइलर बता दिया, असेंबलर बता दिया. जो मुझे नहीं बताने से भी होता, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इवन माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ. Thank you, sir. तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेसिक और नहीं है, यही सबसे एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, क्लियर? तो पाइथन ही यूज़ करना आप लोग, क्योंकि ये यूज़ करोगे, ये सीख लोगे तो आप लोगों के लिए काम में आएगा बाद में. अदरवाइज मैं मैटलैब भी यूज़ कर सकता था, बट मैटलैब को खरीदना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत. ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट, एनी और कोई डाउट है तो बोलो. आई थिंक नहीं है. सो नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ मच पॉपुलर दिस पाइथन इज. आपने यूट्यूब का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस यूट्यूब? नहीं सुना होगा शायद. क्या किसी ने यूट्यूब के बारे में सुना है? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. মাত্ৰ দুটাই শুনিছে আৰু কথা আছে 3টা 10টা মান আছে. বাকীখিনিয়ে শুনা নাই ন? ইউটিউব শুনিছা? Have you heard? Yes, sir. শুনিছো. ছাৰ শুনিছো, চাইছো ছাৰ. Oh, very good, very good. Instagram? Yes, sir. Yes, sir. বৰ্ষা, ইনষ্টাগ্ৰাম. Okay, Borsa will explain this Instagram portion. No problem. So, it is a बहुत popular है, मुझे मते सभी सुनिसा. All of you have heard this about. You know, these sites are developed using Python. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि Python कितना पॉपुलर है. ठीक है, क्योंकि YouTube one of the top most site now. ठीक है, इंस्टाग्राम क्या है
ये सानू वर्षा ये लोग अच्छे से बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। देन बाकी रेडिट, ड्रॉप बॉक्स, डिस्कस, इसमें से ड्रॉप बॉक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं पाइथन के जरिए बनाया गया है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हाउ मच पॉपुलर पाइथन इज, ठीक है। So these are the reasons why we have to learn Python. Now, today with this I am going to end this lecture, as this is the first lecture. ठीक है, और अटेंडेंस जो फर्स्ट क्लास में दिया था इसमें भी दे देना चैटिंग में। अब मैं चैट में दे दो सब लोगों का अटेंडेंस, एक जन ने दिया है, ठीक है। ठीक है, और पढ़ाऊँ या आज के लिए इतना काफी है? Sir, your class was very interesting. यस, आप बस थोड़ा कट के फिर से बोलिए, आप सुनाई नहीं दी। Sir, because you are teaching from basics, so it was very interesting, sir, because we were learning something new and that is going to help us throughout. So that's why. Thank you, Sanu. It's really very glad to know that. Okay, thank you. सर रेडिट, ड्रॉपबॉक्स एंड डिस्कस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। सॉरी, तो रेडिट, ड्रॉपबॉक्स, डिस्कस ये भी कुछ साइट्स है जिसको हमने पाइथन के साथ बनाया है, और इसके बारे में क्या है आपको मेरे ख्याल से रेडिट को छोड़ो, रेडिट भी एक सोशल जैसे आप यूज करते हो। फेसबुक किसी ने यूज किया है? फेसबुक यूज किया है कि नहीं? हेलो हाँ सर, हाँ सर, सर किया है। करते ही है। सर वर्षा ज्यादा करती है। हाँ, वर्षा देख लिया, वर्षा से ये भी समझ में आ गया वो इंस्टाग्राम भी से बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेडिट भी उसी टाइप का एक है, सोशल शेयरिंग साइट, ओके। तो रेडिट भी है, बट ड्रॉप बॉक्स अलग है। ड्रॉप बॉक्स के बारे में किसी ने सुना है? मेरे को जितना लगता है ड्रॉप बॉक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखो, रेडिट तो मैंने बोल दिया, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो उसी टाइप का एक रेडिट है, बट ड्रॉप बॉक्स इसलिए फेमस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप फाइल को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ड्रॉप मतलब समझते हो ना, रख देना। ड्रॉप ए लेटर मतलब क्या समझते हो? यू ड्रॉप ए लेटर इन द बॉक्स। इसी तरह आप क्लाउड के बारे में तो आई होप यू ऑल नो अबाउट द क्लाउड सर्वर्स। So in Dropbox, actually, what you can do, you can just keep your files. Okay, and up to some portion it is free, so you don't need to worry about it. ठीक है, तो आज ही इसके बारे में थोड़ा सा खुल के देखना, क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी है Dropbox के बारे में। सेकेंड, डिस्कस। हेलो, ठीक है, हेलो, रेस्पॉन्स तो दो, नहीं तो मुझे लगता है आवाज गायब हो गई। यस सर, यस सर। ठीक है, तो डिस्कस के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन सुना है आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो ये सारे हाँ सोशल साइट ही है सब चीज। इसमें एक ही चीज, ये दो अलग हैं, यूट्यूब और ड्रॉपबॉक्स। बाकी सब सोशल साइट है, जो आप फेसबुक में करते हो, जो आप इंस्टाग्राम में करते हो, जो आप लिंक्डइन में करते हो, यही सब चीज ये इन दोनों में भी करोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी की बात आ जाती है कि किसी का इंटरेस्ट इस चीज में है तो इसमें कर सकते हो। बाकी ड्रॉपबॉक्स अलग है। ड्रॉपबॉक्स में आप फाइल्स को अपलोड करके रख सकते हो, आपका सिस्टम में रखने की कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे रख दोगे तो फाइल मिसिंग नहीं होगा। सो दे आर वेरी पॉपुलर। इवन आई थिंक ये दोनों को छोड़ दो, रेडिट और डिस्कस को छोड़ दो, बट यूट्यूब and Instagram and Dropbox are very very popular and they have been developed using Python। और मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया हूँ क्योंकि इस एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो कि पाइथन का कितना फ्यूचर नीड है। ओके, in from my research point of view also, from my research area specialization also, I use Python because Python provides a lot of facilities to implement the algorithms।
So with this, I'm going to terminate the lecture because it is 1 p.m. So I hope you also need to take the lunch. I too. So that's all for today. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. Hmm.